I'm not my previous version. Alright? I'm a new version of mine. Well, under. Under has two uses. How many uses? Two uses. Number one. Use number one is their first indicating condition. It shows condition. Condition like नहीं कहते like चल रहा है अभी कुछ है ना. पेशेंट की इलाज जारी है. पेशेंट की इलाज जारी है, चल रहा है, तो क्या बोलोगे? द पेशेंट इज अंडर ट्रीटमेंट. द पेशेंट इज अंडर ट्रीटमेंट. रोड की निर्माण जारी है, निर्माण चल रहा है अभी, तो क्या बोलोगे? द रोड इज अंडर कंस्ट्रक्शन. द रोड इज अंडर कंस्ट्रक्शन. सम मोर एग्जांपल. घर की मरम्मत जारी है. द हाउस इज अंडर रिपेयर. द हाउस इज अंडर रिपेयर. और टॉपिक पर वाद विवाद जारी है. द टॉपिक इज अंडर डिस्कशन. राइट. देश में महंगाई बहुत ज्यादा है और जारी है, चल रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या बोलोगे? द कंट्री इज अंडर अटैक ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन बोल सकते हो, प्राइस हाइक बोल सकते हो. ओके, क्लियर नाउ? सेकंड यूज. सेकंड यूज इज लेस देन. सेकंड यूज इज लेस देन. अगर आपकी एज 18 से कम है तो आप वोट नहीं डाल सकते. सो यू कांट कास्ट योर वोट इफ यू आर अंडर 18. द पीपल अंडर 18 can't drink. Can't drink. वो पी नहीं सकते, अल्कोहल नहीं ले सकते. राइट. They can't buy also alcohol. नहीं, बाई तो ठीक है, ड्रिंक भी नहीं कर सकते. ऐसा नहीं कि किसी और से खरीदवा लो, घर में पी लो. राइट. You'll be jailed for this, or your parents will be jailed for this. Next. Some more example. Okay, you bought a pen under 5 rupees 5. Okay. Or can you show me a dress under 500? Okay, 500 rupees. Can you show me a jeans under 200? नहीं, jeans नहीं आता 200 के नीचे. Minimum 300 rupees, 350. Bye bye. With has 4 uses. Right now अभी हम लोग पहले first two पढ़ते हैं. With का first use होता है having or carrying something. Having or carrying something. Like you come to Oxbridge with your bag, with your ID card, with your phone. Right. No, you don't come with your phone. Good. Okay. Some more example. You go to fair with money. With Fair and Lovely. Okay. No, beta. Use Fair and Lovely at home only. Right. Don't carry to the fair. Okay. Slip of tongue it was. It was slip of a tongue. Slip of tongue मतलब हुआ by mistake आ गया, मतलब जुबान पे आ गया. Okay. चलो fine. Some more example. और example ले लो. I saw a girl with blue eyes. Okay. Fine. Some more example. Some more example. He was wearing a coat with. Okay. He was wearing a coat with one button, 2 buttons. चलेगा. Fine. Okay. Clear? A man with a suitcase is standing at the gate. I was served tea in a cup with a broken handle. Okay, fine. हाँ, कभी कभी होता है ऐसा. Right. हाँ, in a situation when you go to a hostel, जहाँ पे लड़का रहता है या लॉज है ना, हाँ, उसके पास है ही नहीं तो प्लेट में एक को देगा, एक को कप में देगा. Right. This happens. Some more example. You do come to Oxbridge with the books daily, right? Second use. In the company or presence of somebody something. Means किसी के साथ बोलते हो ना, साथ. Like मैं तुम्हारे साथ पढ़ रहा हूँ. I am reading with you. Okay. और क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? Can you go with me? I'm sitting with Priyanshu. हाँ. I came with my friends. Okay. Or you go to party with your parents. Okay, fine.
Okay, I come here with my friends. Fine. Clear now? Yes, sir. Any more example from your side? हाँ, I have a client with me right now. Means मेरे पास अभी client बैठा हुआ, साथ में बैठा हुआ है. I come to Oxbridge with नहीं strong. I come to Oxbridge with my scooty बोलोगे इसका मतलब हुआ कि स्कूटी को उठाते हो और पैकेट में डाल के ले आते हो या हाथ में लेकर के आते हो, राइट? हाँ, तो with my scooty नहीं बोलना, by my scooty बोलना, on my scooty बोलना, right? I come to Oxbridge by my scooty, okay? Not with नहीं चलेगा. थर्ड यूज्ड फॉर मीन्स और इंस्ट्रूमेंट. जब भी आप मीन्स दर्शाओ, इंस्ट्रूमेंट दर्शाओ तो क्या बोलोगे? विद. एग्जाम्पल, यू राइट विद द पेन. यू चॉप वेजिटेबल्स विद योर टिथ. नाइफ और टिथ. ओके. रॉ वेजिटेबल्स. हाँ, तो टिथ ना. हाँ, यस. Okay, great. Two boys, है ना? They chew vegetables with tongue. That's great, है ना? जीभ से चबाते भी हैं. Extraordinary people. By the way, some more example. You write with the pen. Now, with a pen. हाँ, फाइन. आप कह सकते हो विद द हैंड. वो भी एक इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा है. सो विद द पेन. बट यू राइट विद द पेंसिल? नो, यू राइट इन अ पेंसिल. यू राइट इन अ पेंसिल. यस. How? Anybody has pencil? Yes, sir. Give. Any more pencil? No. Yes, give. Okay. So I'm writing with the pencil. I'm writing with the pencil. You're able to see? I'm writing with the pencil. Right. So when I'm writing with the pencil, by writing, लिखते बहुत लिखा, इतना सारा लिखा तो क्या हो जाएगा? Right. Writing with the pencil or in pencil? क्योंकि पेंसिल डायरेक्टली खत्म हो रहा है. डायरेक्टली खत्म हो रहा है. But when I'm writing with the pen, pen is not over. पेन खत्म नहीं हो रहा है, इंक खत्म हो रहा है. So I'm writing with the pen, with a pen in ink. Like, किसी के पास लाल कलम है? Anybody has red pen? Please give me red pen. Okay. So it's a red pen. Is it a red pen? It's not red pen. ये red pen नहीं है. ये red लिखने वाला पेन है. दिखने में red नहीं है. Red ink pen है. It is red ink pen. Right. It is a blue ink pen. It is a blue ink pen. Blue, ये भले लाल दिखता है, लेकिन लिखता क्या है? ब्लू. दिखता लाल है, लिखता ब्लू है. What? So this is a pen that looks to be red. वो दिख रहा है रेड, बट जब मैं इसे चला रहा हूं यहां पर तो ये चल रहा है ब्लू. राइट. तो दिस इज अ रेड पेन. यस, रेड पेन है, बट रेड इंक पेन नहीं है. दिस इज अ ब्लू इंक पेन. विच इंक पेन? Blue ink pen. So you are writing with a blue pen or blue ink pen? Blue ink pen. Right. So I am writing in a blue ink or with a blue ink? Well, so I am writing with a black ink or red ink? No, both are wrong. I am writing in black ink. I am writing in red ink. Right. Not with black ink, not with red ink. I am writing in red ink. Is that clear? Yes, sir. Clear now? Yes.
So cut something with a knife, see something with your open eyes. She killed him with a gun. She killed him with a gun. Okay. Well, but write in a pencil. Next, fourth use, indicating relationship or agreement or harmony with somebody. Right? तो क्या एग्जाम्पल दोगे आप? Like you're always with your friends. Okay, तो हमेशा अपने दोस्तों के साथ रहते हो. साथ रहते हो का मतलब ये नहीं हो कि साथ में रहते हैं. साथ रहने का मतलब हो कि साथ देते हैं. Right, साथ देते हैं. Some more example. Are you with me? Yes, sir. Hello. Yes, sir. Are you with me? Yes, sir. मतलब क्या हुआ? क्या मेरी बात कुछ सुन रहे हो, समझ रहे हो? Yes, sir. Are you getting? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम मतलब मेरे साथ हो. इसका मतलब हाँ साथ हो, होना हो जाएगा उस सेंस में, बट इन दैट सेंस कि आप मेरी बातों को सुन और समझ रहे हो. क्लियर? सम मोर एग्जांपल. आई एम विद यू, थैंक यू. नेक्स्ट, सम मोर एग्जांपल. My parents are. माय पेरेंट्स आर कहां छोड़ दिया? माय पेरेंट्स आर ऑलवेज विद मी. दैट्स ऑल. With whom do you want to go to the railway station? It's personal. Why do you always go there only? यार वहीं क्यों चले जाते हो बार बार? He has no other place to go, right? उसको जाना ही वहीं है बार बार, नहीं? Because no one is with you. Why do you feel so lonely, बेटा? Parents are there with you. I'm there with you. राइट, मम्मी है, पापा है, भाई है, राइट, फ्रेंड्स है. अब हर्ड दैट द गर्ल्स, मैं सुना हूं, मतलब डोंट गेट ऑफेंडेड, गुस्सा मत हो जाना. अब हर्ड दैट द गर्ल्स हैव देयर दिस वन हियर, राइट, बट आई एम एबल टू सी दैट द बॉय इज देयर विद दिस, राइट. वन मोर. The boys, you are also the same perhaps. Right. Sir, they also go to the boys. I told one boy. There is one boy. There is a boy. Well, below. Below it has only one use, not two uses. So below, you must have read now that over पढ़ा है ना तुम लोगों ने? Yes, sir. Like the teacher is over students, Yes, sir. the principal is over, the principal is over teachers, right? In the same manner, a father is over mother. हाँ, according to English Constitution, है ना, अंग्रेजों की जो बात है, या according to other religions, right? A man is over a woman in the house, right? But according to Sanatan Dharma और हिंदू धर्म, lady comes first, right? किसी ने कहा कि एक संत से कोई एक लेडी लड़ रही थी, क्या आपको लगता है कि नहीं कि स्त्री और पुरुष बराबर हैं? बोले नहीं, कभी नहीं. She became very angry. देखिए ऐसे ही लोग हैं साधु संत, ऐसे ही, इसलिए बात नहीं मानना चाहिए. इनका कहना है कि स्त्री पुरुष बराबर है ही नहीं, राइट? तो एकदम बराबर नहीं है, तुलना ही नहीं है स्त्री और पुरुष. The lady became very means more aggressive. How can you tell this line that a lady is not equal to man? Sir, then the miracle is also there. The saint replied that the lady or a girl or a woman is far more above than boys or man. Right. There is no comparison. वैसा comparison है ही नहीं. स्त्रियां बहुत ऊपर हैं. Right. So mom is over dad, father. Right. और some more example, अब उसको उल्टा कर लो, opposite कर लो. Students are blank teachers, below teachers. Nurse is blank doctors, below a doctor.
A sub inspector is blank inspector. Below. Below inspector. The vice president is blank president. Below. Below president. Is that clear? That's all about it. The standard of his work is below average. The sergeant in the police force is below an inspector. Okay. How will be your marks? How will be your performance in the coming days, in the or in next week? Below others or above others? Below or above? Okay, fine. That's all, everybody? Good. Well, the next preposition that we are going to learn today is for. What is that? For. What is that? For. For. It's not for. It's for. For means char. For. For. Right? So for preposition is there as a meaningful. As a meaningful. अब as a meaningful अगर आएगा तो it has three uses. How many uses? Three uses. Use number one, indicating aim or destination. जब भी आपको aim दर्शाना हो या जब भी आपको मंजिल दर्शाना हो, डेस्टिनेशन दर्शाना हो, तो आप क्या लगाओगे? For लगाओगे. Example, like अगर कोई बस लगी है बस स्टॉप पे, तो कहाँ जाएगी? कहीं तो जाने के लिए लगी होगी ना. तो मान लो वो जा रही है तानिया घर. हाँ, तो क्या बोलोगे? द बस इज फॉर तानियाज हाउस. या फिर ट्रेन लगी है स्टेशन पे और वो जाने वाली है धनबाद, तो क्या बोलोगे? द ट्रेन इज फॉर धनबाद. ये ऑटो जाएगी कोडरमा, तो क्या बोलोगे? दिस ऑटो इज फॉर कोडरमा. क्लियर? अगर इंट्रोगेटिव में पूछना हो किसी को, आप पूछ रहे हो कि ये बस कहां तक जाएगी, कहां के लिए है, तो क्या बोलोगे? वेयर इज द बस फॉर? वेयर इज द बस फॉर? अगर ये पूछना है क्या बस कोडरमा जाएगी, विल द बस गो टू कोडरमा, रॉन्ग हो जाएगा. मत बताना ऐसे, मत बोलना ऐसे. क्या बोलना? इज द बस फॉर कोडरमा? इज द बस फॉर कोडरमा? इज द बस फॉर कोडरमा? इसका मतलब क्या है कि इसकी उस बस की आदत है वहां जाना. इज द बस फॉर कोडरमा का मतलब है यही बस है जो कोडरमा को जाती है क्या? विल द बस गो टू कोडरमा का मतलब हो सकता है आज ही कोडरमा में जाए. आज हो सकता है साथ में बुक कर ली है उसको कि चलो यार आज कोडरमा मेरा वहां पे काम है तो आज चली जाए. लेकिन इज द बस फॉर कोडरमा, द बस इज फॉर कोडरमा, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी रूटीन ही है कोडरमा जाना. इज दैट क्लियर नाउ? अंडरस्टूड? He headed for jungle. He headed for jungle का मतलब हुआ कि वो जंगल की दिशा में गया. Right? He headed for jungle. तो उसके डेस्टिनेशन क्या है? जंगल है. उसकी मंजिल जंगल है. Is this train for Mumbai? क्या है ट्रेन मुंबई के लिए है? Is the train for Mumbai? Is that clear now? Finished everybody? What's the next one? Second use. Second use is to show purpose or function. जब भी आप उद्देश्य दर्शाना चाहो या पर्पस दर्शाना चाहो, फंक्शन दर्शाना चाहो, तो आप फॉर लगा सकते हो. लाइक अगर इतना बड़ा टीवी है तो द टेलीविजन इज फॉर, द टेलीविजन इज फॉर वॉचिंग समथिंग, राइट? वॉचिंग मूवीज, वॉचिंग न्यूज. ओके. द डिजिटल बोर्ड इज फॉर राइटिंग, फॉर स्टडिंग. Alright, the pen is for writing. The pen is for writing. The book is for reading. तो उस बुक का पर्पस क्या है? उस पेन का पर्पस क्या है? तो जब भी आपको पर्पस या फंक्शन दर्शाना हो तो आप फॉर लगा सकते हो. राइट? लाइक द बाइक इज फॉर फ्लाइंग, राइडिंग, फ्लाइंग फॉर वॉइस. हाँ. The bike is for riding. The aeroplane is for flying. For swimming. Great. Clear now? She wants to buy a machine for slicing bread. Slicing bread. हाँ, bread को काटने के लिए. Right. Slice means काटना.
स्लाइस मीन्स काटना, लेकिन बराबर बराबर भागों में काटने के लिए। स्लाइस का मतलब होता है बराबर बराबर भागों में काटने के लिए। देखो ना कि बंटवारा जब करते हैं तो मम्मी काट के दे रही है पिज्जा का 4 भाग राइट। तो कुछ लोग होते हैं ना, अच्छा मेरा तो छोटा लग रहा है यार है ना, हल्का से छोटा लग रहा है ना, साइड से छोटा लग रहा है। ओके, तो वहां पे स्लाइस का यूज करते हैं। मदर स्लाइस्ड पिज्जा इनटू 4 पार्ट्स, माँ ने पिज्जा का 4 भागों में बांट दिया, काट दिया, राइट। इसका मतलब है स्लाइस का मतलब वो बराबर बराबर एक जैसा काटना, राइट। आई बॉट अ पेन फॉर राइटिंग, तो पेन क्यों खरीदा आपने, पर्पस क्या है, फॉर गिफ्टिंग समबडी, राइट, है ना, और फॉर राइटिंग। चलो फाइन, क्लियर, दैट्स ऑल नाउ। थर्ड यूज, कंसिडरिंग व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम समबडी और समथिंग। जब आप किसी व्यक्ति से या वस्तु से, किसी चीज से आप जो उम्मीद करते हैं उसे आप फॉर से दर्शा सकते हैं, राइट। किससे, फॉर से। लाइक नहीं बोलते सर इट इज हॉट फॉर टुडे, इट इज हॉट फॉर टुडे। आज थोड़ी ज्यादा गर्मी है, नहीं लग भी रहा था कि आज गर्मी होगी, है ना, भादों की गर्मी होती ही है ऐसी, राइट। एक गर्मी होती है जून वाली, है ना, वो नहीं है। ये गर्मी जो उमस टाइप की लगी है ना, मतलब अंदर से गर्मी लगेगा, बाहर से नहीं लगेगा अंदर से उमस टाइप का, राइट, दैट इज देयर। तो इट इज एक्सपेक्टेड, तो क्या बोलोगे, इट इज हॉट फॉर टुडे, तो पता ही था कि गर्मी तो होनी ही है, राइट। अगर बारिश हो रही है और 2 दिन पहले आपको पता चल गया, राइट, तो क्या बोलोगे, इट इज रेन फॉर 2 days, these 2 days और फॉर संडे, राइट। मतलब ये उम्मीद ही है कि संडे को बारिश होगी। अभी हुआ था ना कि 2 दिन लगातार ही बारिश, 3 days, है ना, सुबह से शाम तक बारिश हो रही है, हाँ। So you must be enjoying, right? Okay. It's hot for November. It's hot for नवंबर में लगभग गर्मी रहती है ना, ठंडा नहीं आता उतना। Well, she's tall for her age. She's tall for जो उसकी एज है ना, उसके हिसाब से तो लग रहा है कि वो ठीक लंबी है, उतनी ही लंबी लगभग होनी चाहिए, राइट। तो ये उम्मीद है उससे कि जैसा उसका एज है, लाइक अब किससे मिलना हो और बोला, पूछा कि एज कितना है, तो 18 साल, तो ऑटोमेटिक लगता है कि हाँ ठीक है यार, 5 फीट तो होगा ही होगा आदमी, राइट। मिनिमम 5 फीट मस्ट बी देयर, राइट। हो सकता है 5, 5.5 हो, यही बीच में होगा। तो क्या बोलोगे, सी इज टॉल फॉर हर एज, ही इज टॉल फॉर हिज एज। तो ये उम्मीद ही है पहले से, राइट। ही इज इंटेलिजेंट फॉर हिज एज, है ना। लाइक कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं तो आप नहीं बोलते अरे यार काफी इंटेलिजेंट है, तो फिर क्या बोलते हो, कोई और बोले अरे नहीं नहीं नहीं, वो जैसा उसका एज तो इंटेलिजेंट रहेगा ही ना यार, राइट। तो ही इज इंटेलिजेंट फॉर हिज एज, जैसा उसका एज है वो इतना ही इंटेलिजेंट है। मतलब इस एज में हम लोग उम्मीद करते हैं कि आदमी ऐसा ही इंटेलिजेंट होगा। क्लियर नाउ? दैट्स टू बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एन अनएम्प्लॉयड पर्सन। तो अब एक अनएम्प्लॉयड पर्सन के लिए ऐसा बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, मतलब वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, लगता है मेरे को कि वो बड़ा हो जाएगा, राइट। लाइक एक बेरोजगार आदमी मेरे जैसा, और अगर मुझे दे दिया गया कि ठीक है 10,000 रुपए खर्च करने कहीं पे, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। तो मैं क्या बोलूंगा, दैट्स टू बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एन अनएम्प्लॉयड पर्सन। तो ये उम्मीद ही है कि अच्छा ठीक है, वो ऐसा अनएम्प्लॉयड पर्सन है, तो उसके लिए 10,000 रुपीज खर्च करना मुश्किल है। क्लियर नाउ? ओके, सम मोर एग्जांपल, और कुछ एग्जांपल ले लो। लाइक जनवरी मंथ, इट इज कोल्ड फॉर जनवरी, नहीं, जनवरी में महीने हम लोग क्या उम्मीद करते हैं, वो ठंडा होगा, राइट। इट इज कोल्ड फॉर जनवरी, नहीं कुछ उम्मीद नहीं करते। हैप्पी न्यू ईयर। ओके, दैट्स ग्रेट। चलो फाइन, आई होप दैट्स क्लियर बॉडी। बाय द वे, from is only time preposition as well as meaningful preposition. It is not positional preposition. You need to take care of this one, that from का जब भी यूज करोगे तो दो यूज होते हैं, फर्स्ट यूज एंड सेकेंड यूज। फर्स्ट यूज, it is used for starting point, not point,
पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, पॉइंट नहीं है, ओके। तो स्टार्टिंग पॉइंट लाइक वह छत पर से कूद गया, he jumped from the roof, he jumped from the roof। तुम अपने घर से आए, you came from your home, our home नहीं, your home, right, you came from your home और I came from my home, our home का मतलब हो जाएगा सबके घर से आए, right। some more example, और एग्जाम्पल ले लो, लाइक आर्ची कल रात में बेड पर से गिर गए थे नीचे, राइट, तो क्या बोलोगे? आर्ची फेल डाउन फ्रॉम द बेड, नहीं बेड, फ्रॉम द बेड, तो सी फेल डाउन फ्रॉम द बेड, क्लियर। ही जंप्ड फ्रॉम द वॉल, वह कहां से कूद गया? दीवार पर से कूद गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? दीवार, नीचे नहीं था स्टार्टिंग पॉइंट, दीवार स्टार्टिंग पॉइंट था। ही जंप्ड फ्रॉम द वॉल, फ्रॉम द वॉल, स्टार्टिंग पॉइंट वॉल है। कहां से आ रहे हो तुम? फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग? तो शी इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, शी इज कमिंग फ्रॉम, तो स्टार्टिंग पॉइंट कहां है? दिल्ली। हैज अ ट्रेन फ्रॉम मुंबई अराइव्ड, क्या जो मुंबई से ट्रेन आने वाली है, स्टार्टिंग पॉइंट कहां है? मुंबई। जो मुंबई से ट्रेन आने वाली है, क्या वो आ चुकी है? हैज अ ट्रेन अराइव्ड फ्रॉम मुंबई, ठीक है, यस नो, दैट यू विल नो, you think so, okay, very good। second use, somebody something is originated or representing somebody, right। जब भी आप ये शो करना चाहो कि किसी की उत्पत्ति कहां से हुई है, राइट, ओरिजिनेशन कहां से हुआ है, या वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर वो आया कहां से, राइट, कम्युनिकेशन भेजा कहां से गया, तो आप यूज करोगे फ्रॉम। एग्जाम्पल, द गंगा इज फ्रॉम गंडक, गंडक, हिमालयस, द हिमालयस, राइट, चाराडी, ओके, नॉट दिस गंगा, नहीं नहीं नहीं, गंगा लड़की के नाम नहीं बोल रहा हूं, चलो मैं गंगा नदी की बात कर रहा हूं, नॉट दिस गंगा, ओके। सम मोर एग्जांपल, और एग्जांपल लाइक, ओके, अगर आप लोग जा रहे हो ऑन द रोड यूजिंग आईडी कार्ड्स एंड ऑल, तो क्या बोलेंगे? दैट यू ऑल आर फ्रॉम ऑक्सब्रिज, तो आप ऑक्सब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्लियर। वी ऑल आर फ्रॉम ऑक्सब्रिज, चलो ठीक है, नहीं कुछ और बोलना चाह रहा था मैं, लाइक अगर हम लोग कहीं और घूमने चले गए, मान लो भारत से बाहर चले गए, राइट, और वहां कोई पूछे वेयर आर यू फ्रॉम, तो क्या बोलोगे? वी ऑल आर फ्रॉम इंडिया, वी ऑल आर फ्रॉम, तुम्हारी उत्पत्ति कहां हुई है? इंडिया। या हम लोग रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? इंडिया को, क्लियर। तुम्हें लेटर कहां से मिला हर्ष? तो ही विल नॉट पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस तेरे को लेटर क्यों देगा यार? यू गॉट अ लेटर फ्रॉम योर रिलेटिव, राइट, फ्रॉम अ कंपनी, फ्रॉम न्यू दिल्ली, राइट। ऐसा हो सकता है कि मुझे एक लेटर मिला न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली से, तो मैं क्या बोलूंगा? आई गॉट अ लेटर फ्रॉम न्यू दिल्ली। और हाँ, यू गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम प्रियांशु, ओके। और यू गॉट अ मेडल फ्रॉम ऑक्सब्रिज, और what in the competition, हाँ, fine, medals, trophies you are given from Oxbridge। We are from India, tell me some famous quotations from Shakespeare, tell me some famous quotations from Shakespeare। I got a gift from my brother, you copied that or what? No, okay, clear now? Can I get some more example quickly? From some more example, from some more example, I got a book from Oxford. I got a book from Oxford, you bought a book from Oxford, you don't get a book, I got information from my college. you got information from your college, okay। Some more example, we are from Oxford, okay, fine, it means you understood it, right? Let's go for the next one, over, over is not over, after by over is the preposition that is the most confusing because it has most number of uses। by के बाद यही एक preposition है जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है,
मीन्स ढेर सारे यूजेस हैं, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। फर्स्ट यूज, एंडिंग और फिनिशिंग। एंडिंग और फिनिशिंग, इट इज यूज्ड एज एन एडवर्ब आल्सो। एग्जांपल, क्लास इज ओवर, द क्लास इज ओवर, क्लास खत्म हो गया। मिस्टर एक्स इज ओवर, मिस्टर एक्स इज, मतलब मिस्टर एक्स हाँ डेथ कर गया, राइट, मर गया। नहीं नहीं, वो एक्टर तो नहीं है, राइट। हाँ, कुछ और है तो अलग बात है। हाँ, मिस्टर गांधी जी इज ओवर, मिस्टर गांधी इज ओवर, यस, in 1948 only, in 1948 only. Do you justify his death? Justify मतलब क्या तुम सही ठहराते हो उसके डेथ को? उनके डेथ को सही बोलते हो? Okay. Before the stationery is over, buy it. Hey, before the book 2 is over, you buy it. Book 2 खत्म हो जाए इसके पहले खरीद लो। Book 2. No, it's not available there. Right. Next. Some more example. Some more example. Overing नहीं यार. Before grandfather is over, serve him. सेवा कर लो। Right. Okay. Take all property. You know, आने वाले टाइम में यही होने वाला है, जहां पे बच्चे ये वेट करने वाले कब मेरी मम्मी डेथ करेगी ना, उसके बाद तो सब लिखवा ही लेते, उसके बाद तो सब हम कर ही लेते। अभी कंडीशन ये आने वाला है कि जिसके पास प्रॉपर्टी होगा उसका बुढ़ापा बहुत अच्छा से नहीं कटने वाला, जिसके पास कैश पैसा होगा, कैश पैसा, और वो भी कैश पैसा पर मंथ आएगा, उसकी लाइफ अच्छी कटने वाली है। राइट। एक ऐसा आदमी, एक आदमी है एक्स, एक आदमी है वाई। एक्स की बहुत प्रॉपर्टी करके रख दिया है, ये 5-10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कर दिया, राइट, 5 to 10 करोड़। इसकी वैल्यू उतनी नहीं होने वाली बुढ़ापा में, लेकिन ये कुछ प्रॉपर्टी नहीं कर दिया, लेकिन इसके पर मंथ 1 लाख रुपए आता है, एवरी मंथ 1 लाख रुपीज आता है, या 50,000 ही आता है। इसके बच्चे ने इसको मरने नहीं देंगे, राइट। बोलेगा यार जूस पिलाओ, जो करना है कराओ, राइट, बट वो 50,000 to 1 लाख जो आ रहा है ना पर मंथ, ये आते रहना चाहिए। सो इन कमिंग डेज प्रॉपर्टी विल हैव नो वैल्यू। बच्चों की नजर में वो तो समझते हैं बच्चा रे तो मेरा ही है, दिस इज माइन, लेकिन ये जो आ रहा है ना 50,000 से 1 लाख रुपए महीना, वो मेरा नहीं है। जब तक पापा है तब तक, जब तक मम्मी है तब तक, तो इसीलिए वो बचाता है, राइट। जूस पिलाएगा, डाब पिलाएगा और वगैरह वगैरह, रोज पिलाएगा, खिलाएगा, है ना कि हाँ हाँ। जब तक अंगूठा नहीं लगता ना बेटा, कुछ नहीं होता, राइट। और उसमें भी जाकर के हर महीने मेडिकल कराना पड़ता है, कि मेडिकल रिपोर्ट देना पड़ता है, हाँ पापा सही सलामत है मेरे, मम्मी सही सलामत है मेरी, तब पैसा मिलेगा। तो वो भी नहीं मिलेगा। 4 महीने से पड़ा भी रहेगा ना वहाँ पे, 4 महीने से पैसा नहीं उठाया तो वहीं रहेगा, वहीं अटक जाएगा, पैसा मिलेगा भी नहीं, निकाल भी नहीं सकते हो। प्रूफ देना होगा, हाँ वो जिंदा है, राइट। इसीलिए लोग पेंशन रोबोट खड़ा कर दोगे वहां पे सामने, यही मेरे दादाजी है, ये मेरी मम्मी है। इतना पैसा रिपोर्ट में खर्चा करेगा, उतना का मतलब है कि तुझे 50,000 की जरूरत नहीं होगी, राइट। फॉर हैविंग 50,000 to 1 लाख रुपीज पर मंथ, यू डोंट नीड रोबोट। रोबोट जिसके पास है, जो रोबोट क्रिएट कर लिया, वो भी वैसा जैसा उसकी दादा हो, उसकी दादी हो, उसके मम्मी हो, पापा हो, इसका मतलब उसके पास लाखों करोड़ रुपया पहले से है, लाखों करोड़ों रुपया, उसको 50,000 की जरूरत नहीं है। सेकंड यूज, मोर देन अ लिमिट। जब भी ये बोलना हो दैट लिमिट से ज्यादा हो गया, तो क्या बोलोगे? इट्स ओवर। अब सर सहन शक्ति से बाहर है, ये बहुत डांट दी मेरी मम्मी, राइट। अभी कल ही एक बच्चा आया, कल परसों आया था एक बच्चा शाम में, सर माथा खराब हो गया मेरा, पापा से एकदम झगड़ा हो गया मेरा,
अभी पापा से मिल जाएंगे ना हम, तो पापा या तो हमको मार देंगे या हम पापा को मार देंगे। राइट, इट्स ओवर नाउ। राइट, मैं बोला गधा, मारो खींच के दो तमाचा तुम्हें। क्या क्या बात बोल रहा है यार सर, ऐसा हो गया है। फिर मैंने उसको कूल डाउन कराया, फिर बातचीत हुई, फिर बाद में बोलता नहीं सर, नहीं सर, मतलब गुस्सा गुस्सा फ्लो फ्लो में बोल दिया, वैसा नहीं होगा। राइट, हाँ, तो मोर देन द लिमिट, जब लिमिट से ऊपर चल जाए, सर इट्स ओवर नाउ, आई कांट बेयर इट, आई कांट टॉलरेट इट। अब ये हद से ज्यादा हो गया, मैं टॉलरेट नहीं कर सकता हूं इसको। एग्जाम्पल, सम मोर एग्जाम्पल, सम मोर एग्जाम्पल। Now it's over. I can't. Sir, it's over. Now I can't stay in the classroom. I can't stay in the... So go out. Bye. See you. See ya. See ya is there a see ya? Yes, sir. See ya means see you again. See ya. Yes. See ya soon. Right? फिर मिलेंगे जल्दी. Bye. हाँ, some more example. Be quick. It's over. Now I can't eat it. It's over. I can't eat it. Hey, it's over. I'm fed up with your drinking habit. ये हद से ज्यादा हो गया, अब मैं तेरे पीने की आदत से उब चुका हूं। राइट, सम मोर एग्जांपल। It's over. I can't study more. हाँ, इट्स ओवर, आई कांट स्टडी मोर। मैं बहुत पढ़ लिया सर, अब पढ़ाई नहीं होगी मेरे से। राइट, हाँ तो ईटा भट्टी है, जाए काम करो और क्या, उठाओ। राइट, कंक्रीट वगैरह उठाओ, सीमेंट उठाओ, ढो ले जाओ, लाओ। हर रोज 400 से 500 मिलेंगे, और दिल्ली मुंबई चले जाओगे तो हर रोज 1000 मिलेंगे। Right, every night party, that's right। Okay, so it's over, I can't bear it। India has overpopulation। India has overpopulation means हाँ, कुछ ज्यादा ही हो गई है अब। राइट, इंडिया हैज गॉट एन ओवर पॉपुलेशन, सो वी हैव टू कंट्रोल इट। नहीं, वी हैव टू कंट्रोल इट। देयर हैज टू बी सम रूल्स रेगुलेशंस, आई मीन रूल्स रेगुलेशंस शुड बी देयर। राइट, द चैप्टर इज ओवर मी, मतलब चैप्टर हाँ ऊपर से जा रहा है सर, मेरे अंदर नहीं जा रहा। राइट, द चैप्टर इज ओवर मी। जिसे आप पढ़े हो ना मम्बो जम्बो, बस वही बोल दो। राइट, द सेम, नॉट लाइक दैट, सेम, एग्जैक्टली द सेम, like the statements given by that villain in the movie Bahubali was over the audience, right? हाँ, right, हाँ, that language used to be, What was that? what was, हाँ, like that only। What was the language? Bye. Indicating superiority in rank or authority। जब भी आपको ये बोलना हो ना, जब भी आपको ये बोलना हो दैट वो सुपीरियर है, दैट इज सुपीरियर, दैट इज सुपीरियर, या ही सुपीरियर, सी सुपीरियर, तो आप क्या बोलोगे? व्हाट विल यू टेल? ओवर। लाइक नहीं बोलते दैट डॉक्टर नर्स से ऊपर है, कंपाउंडर से ऊपर है। द डॉक्टर इज ओवर नर्स, ओवर अ नर्स और ओवर अ कंपाउंडर, मतलब उसकी जो रैंक है, उसकी जो अथॉरिटी है वो सुपीरियर है, दैट इज सुपीरियर। और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक द प्रिंसिपल इज ओवर द टीचर, द प्रीफेक्ट इज ओवर स्टूडेंट्स, द मॉनिटर इज ओवर स्टूडेंट्स, द पीएम इज ओवर any post, right, over any post in any political post, any post यार। पीएम की बात को टालने का तो कोई नहीं है। हाँ, नॉट लीडर पोस्ट की बात कर रहा हूं। प्रेसिडेंट एंड पीएम एंड द चीफ जस्टिस, राइट, चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट एंड पीएम, दे आर इक्विवेलेंट, उनका अलग अलग रूल है। राइट, उनका अलग अलग रोल है तीनों का, दे आर इक्विवेलेंट, इनका काम यहाँ पे, उनका काम वहां पे, इनका काम यहाँ पे। वेल अंडरस्टूड नाउ। मिस्टर सनी इज ओवर मी इन द ऑफिस, मतलब कोई सनी नाम का लड़का है जो मेरे से
ऊपर का ओहदा रखता है, राइट? सी हैज ओनली द डायरेक्टर ओवर हर, उसके ऊपर केवल डायरेक्टर ही है, कोई और नहीं उसको ऑर्डर देने वाला। इज दैट क्लियर नाउ? फोर्थ यूज, मोर देन। Whenever you have to use more than, आप वहां यूज करो over. Like, कितने पैसे तुम्हारे पास हैं, या कितना पैसा होगा यार, अगर मुझे एक मोबाइल खरीदना हो तो कितना चाहिए मेरे को पैसे? 1 लाख रुपीज, माई गॉड। 1.5 लाख, मतलब एक मोबाइल खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपए खर्च दूं? Well, so you will tell that the price of mobile is over 50,000, over 20,000, right? 25,000 rupees. How many students are there in the class? They are over 40 in number. They are over 40 in number. Or how many participants are participating tomorrow in the competition? Over 25 students. Over 25 students. Okay. Some more example. Like, कितना देर तुमने वेट किया? I waited for over 2 hours. I waited for over, तो for भी लगाना, over भी लगाना। क्यों? Because like I waited for over 2 hours. इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने प्रतीक्षा किया कितने देर के लिए? तो के लिए फॉर लगा दिया, टाइम प्रीपोजिशन, ओवर मीनिंगफुल प्रीपोजिशन हो गया, ओवर 2 आवर्स मतलब 2 घंटा से ज्यादा देर के लिए। क्लियर? हाउ फार इज योर होम फ्रॉम ऑक्सब्रिज? सर इट्स ओवर 2 किलोमीटर, मतलब ये 2 किलोमीटर से ज्यादा है। इज दैट क्लियर नाउ? दैट्स ऑल एवरीबॉडी? फिनिश्ड?